आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और न्यूज 18 की सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। कोरोना बंदी है और इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। चलिए कोरोना पर बिहार भर का हाल देखते हैं। तो बिहार में कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या है 126 और 15 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। कल 13 नए मरीज मिले थे। सिवान की बात करें तो सबसे अधिक 29 कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां से हैं। नालंदा में अब तक 28 पॉजिटिव मरीज हैं। इसके अलावा मुंगेर में अब तक 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। खाजपुरा में एक और संक्रमित मरीज मिला है। बिना राशन कार्ड वालों को भी 1000 रुपए राज्य सरकार देने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है नया नंबर, और यह नंबर है जिस पर स्वास्थ्य की जानकारी आप ले सकते हैं। कुल मरीजों की संख्या 126। बिहार के तमाम जिलों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी सिवान पहले पायदान पर है, जहां पर सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके बाद मुंगेर में, और एक एक कर उन सभी जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है, जहां से खबर आई कि यहां भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। चलिए एक अच्छी खबर की बात करते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी की है और 43,574 करोड़ रुपए में खरीदी है यह हिस्सेदारी। इसके साथ ही फेसबुक अब रिलायंस जियो का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है। इस डील पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा है कि हमने 2016 में जियो लॉन्च किया था। भारत का डिजिटल सर्वोदय, भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना और भारत को दुनिया के प्रमुख डिजिटल सोसाइटी में शामिल करने का सपना था। उन्होंने कहा कि रिलायंस को दीर्घकालिक साझेदार और भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बदलने के लिए फेसबुक का स्वागत करने का मौका मिला है, जिसका फायदा सभी भारतीयों को मिलेगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो और फेसबुक की साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगा। Fellow Indians, Namaskar. I trust that all of you are safe and well. I am here to share with you some exciting news today. All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst to make India the world's leading digital society. Over the past few years, Facebook, WhatsApp and Instagram have become household names in India. WhatsApp in particular has entered our people's daily vocabulary in all the 23 official languages of India. WhatsApp is not just a digital application. It has become Aapka or Hum Sabka Pyara Dost, a friend who brings together families, friends, businesses, information seekers and providers. The combined power of Jio's world-class digital connectivity platform and Facebook's intimate relationship with the Indian people will offer innovative new solutions to each one of you. In the very near future, JioMart, Jio's digital new commerce platform, and WhatsApp will empower nearly 3 crore small Indian Kirana shops to digitally transact with every customer in their neighborhood. This means all of you can order and get faster delivery of day-to-day items from nearby local shops. At the same time,
Small kiranas can grow their businesses and create new employment opportunities using digital technologies. And in the days to come, this winning recipe will be extended to serve other key stakeholders of Indian society, our kisans, our small and medium enterprises, our students and teachers, our healthcare providers, and above all, our women and youth who form the foundation of a new India. Our visionary and most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has set two ambitious goals in his Digital India mission: ease of living for all Indians, especially for the common Indian, and ease of doing business for all entrepreneurs, especially for the small entrepreneur. Today, I assure you that the synergy between Jio and Facebook will help realize these two goals. Finally, I take this opportunity to wish each and every one of you good health and safety in the current extraordinary situation in India and around the world. We are all in this together, and together we will overcome this pandemic. Corona harega, India jeetega. With our collective efforts, India will surely emerge stronger, healthier and better. Thank you and Jai Hind. और चलिए बड़ी खबर आ रही है। राज्य के बाहर फंसे छात्रों का मामला पहुंच गया है हाई कोर्ट। जी हां, पटना हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। बिहारी छात्रों की सुरक्षा को लेकर जवाब की मांग की गई है और आज दोपहर तक बिहार सरकार से रिपोर्ट की मांग हाई कोर्ट ने की है। बिहारी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है, उन छात्रों के बारे में जवाब तलब किया है, उनकी सुरक्षा को लेकर पूछा है और आज दोपहर तक बिहार सरकार से रिपोर्ट की मांग की गई है। और इधर बीजेपी विधायक की बेटी को कोटा से लाने के लिए जिस अधिकारी ने पास जारी किया था उसे सरकार ने सस्पेंड कर दिया और उसके विरोध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ यानी कि बासा ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। बासा के लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने सस्पेंशन वापस नहीं लिया तो आगे कड़े कदम उठाएंगे। बासा ने आरोप लगाया है कि जिला पदाधिकारी ने गुडविल के खिलाफ काम किया। बासा के अधिकारियों से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बासा ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर नवादा के एसडीएम का सस्पेंशन जल्द से जल्द वापस नहीं लिया जाएगा तो वो लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे। जाहिर सी बात है सरकार के लिए खतरे के संकेत हैं। हमारे साथ बासा के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। हम लोग निश्चित रूप से आज बैठक करेंगे टेली कॉन्फ्रेंसिंग से। सभी जिला यूनिट से हम लोगों ने इसको फीडबैक मांगा है और इसके बाद हम लोग इसमें आंदोलनात्मक जो है हम लोग इसका कार्रवाई करेंगे। तो आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे तो इसका स्वरूप क्या होगा? नहीं, स्वरूप अभी हम बताएं ना कि अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी हम लोग सभी जिला इकाइयों से इसका फीडबैक मांगे हैं और हम लोग शाम तक हम लोग बताने की स्थिति में हूँ। सर, आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं महासचिव हूँ बासा का। तो आखिर पास अगर आप इशू करेंगे तो सवाल तो उठेगा ना कि जब लॉकडाउन है तो पास क्यों इशू किया गया? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जितने भी सरकार के एडवाइजरी निर्गत हुए उसी के आधार पर निर्देश भी गया है और उसमें एक निर्देश ये भी था कि आप अंतर्राज्यीय परमिट निर्गत कर सकते हैं। वहां पे उसको डीएम के जिम्मे दिया गया था। एक बार पावर जब डेलीगेट कर दिया गया, दैट कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड टू एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एकदम सेटल्ड प्रिंसिपल्स है। तो आप उसके बाद आपका अन्य जिला, पटना जिला में भी कोटा के लिए बहुत सारे पास निर्गत किए गए हैं। पटना जिला से भी पास निर्गत? हाँ, बिल्कुल, अन्य जिलों से भी किए गए हैं। आपको मुजफ्फरपुर से निर्गत किया गया है, आपको भोजपुर से निर्गत किया गया है। तो मतलब यहाँ से पटना से जाकर कोई किसी को लेकर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को आप इतना कमजोर समझ लिए हैं कि आप उन्हें बल्ली का बकरा बना दे रहे हैं। एक बड़ी बात बता रहे हैं, जिला पदाधिकारी ने निर्गत किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी बात बता रहे हैं कि बहुत सारे पास इशू किए गए हैं। बिल्कुल, तो आप जांच कर लीजिए। हम लोग आरटीआई में मांग सकते हैं इसको। अगर सरकार नहीं देगी तो हम लोग आरटीआई में मांगेंगे। जितने कोटा के लिए, और पटना में तो अनेकों वीआईपी के लिए कोटा के लिए पास किए निर्गत किया गया है। तो देखिए, एक बड़ा बयान दे रहे हैं बासा के लोग कि पटना से कई वीआईपी के लिए, कोटा के लिए
पास इशू किया गया है। जाहिर सी बात है, ये बड़ा सवाल खड़ा किया है बासा के लोगों ने कि जब सरकार ने ही आदेश दिया है तो फिर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों। कैमरामैन मनोज के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए एक बड़ी और अच्छी खबर हम आपको बताते जा रहे हैं। गया में एक और पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो गया में एक और पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, चौथी बार जांच हुई जिस रिपोर्ट में नेगेटिव सिम्टम्स आए हैं और एक बार और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नेगेटिव होने के बाद उस मरीज को डिस्चार्ज किया जाएगा। 4 पॉजिटिव मरीज पहले ही डिस्चार्ज हो चुके हैं। अरुण चौरसिया हमारे साथ फोन लाइन पर। अरुण, एक और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्या खबर? निश्चित रूप से गया वासियों के लिए राहत की खबर है। यहाँ अभी तक 5 कुल कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए थे और उनमें से 4 जो है पूरी तरह से ठीक होके अपने घर वापस आ गए हैं और वो घर में क्वारंटाइन है। बाकी जो एक मरीज जिसका ANMCH में इलाज चल रहा था, उसकी दूसरी और तीसरी रिपोर्ट लगातार पॉजिटिव आ रही थी, लेकिन जो चौथी रिपोर्ट आई है वो निगेटिव आई है। तो जो स्वास्थ्य विभाग का एडवाइजरी है उसके अनुसार लगातार 2 निगेटिव आने के बाद ही मरीज को छोड़ा जाता है। तो आज फिर से इसका सैंपल भेजा जा रहा है और उम्मीद है कि कल तक ये रिपोर्ट आ जाएगी। अगर फिर ये रिपोर्ट आती है निगेटिव तो इसे भी अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अगर इसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी तो गया में जो भी 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो ठीक होने की, यानी कि यहाँ कब कोई भी एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं बचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो कोरोना से जुड़ी हुई खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर है झारखंड के लोहरदगा से, जहां एक बड़े मोबाइल दुकान में आग लगी और इस घटना में करोड़ों का मोबाइल फोन और एसेसरीज जलकर राख हो गया। शहरी क्षेत्र के न्यू रोड के अलका सिनेमा कैंपस के पास ये घटना घटी है और घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे मेहनत की और आग पर काबू पाया। दुकान मालिक ने साजिश के तहत जानबूझकर आग लगाने का शक जताया है। उनके मुताबिक दुकान का ताला टूटा था, शटर भी आधा खुला हुआ था, साथ ही दुकान में चोरी की गई है। हालांकि एसडीपीओ ने जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कही। जल्द ही मामले का खुलासा करने का उन्होंने दावा कर दिया है। हम आपको बताएं कि अलका सिनेमा कैंपस में 23 जनवरी 2020 को जिले में दंगों के दौरान कपड़ा दुकान में आग लगी थी और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। निश्चय तो लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर, क्योंकि शटर आधा खुला होने का बात बताई गई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी के द्वारा जो है शटर खोलकर इसमें आग लगाया गया। तो मोबाइल दुकान में भीषण आग लगी। एक साथ 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि पहले चोरी की गई, क्योंकि जो हाल उन्होंने अपनी दुकान का देखा, शटर का देखा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ताले टूटे हुए थे, शटर भी आधा खुला था और सामान भी चोरी हुए हैं। तो ऐसे में नुकसान तो बड़ा हुआ ही है, लेकिन ये एक सुनियोजित साजिश के तहत इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया गया है। तो लोहरदगा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, मोबाइल दुकान में लगी भीषण आग। हालांकि एसडीपीओ अभी फिलहाल ये कह रहे हैं कि अभी जांच होनी बाकी है, जांच के बाद कुछ कह पाएंगे। फिलहाल 2 घंटे की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। एक साथ 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के बीच में कौतूहल का विषय इस बात को लेकर है कि आखिर जो दुकानदार कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है। कोरोना की दोहरी मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। कोरोना बंदी की वजह से किसान के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल कट नहीं रही और अब जब उन्हें फसलों को काटने की छूट दी गई, तब बेमौसम बरसात ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। गेहूं और अन्य फसलों की खेतों में पानी लग गए हैं, खड़ी फसलों के दाने काले पड़ने लगे और इधर सरकार ने किसानों को खेती में हुए नुकसान के लिए सर्वे कराने का दावा किया था, लेकिन सर्वे पदाधिकारी भी घर बैठे ही खेतों की रिपोर्ट अपडेट कर रहे हैं। अभी देखने के अनुसार ही पता चल 30 या 25 ऐसे नुकसान है, तो वही रिपोर्ट अब जाकर ब्लॉक से दिया जाएगा। तो अभी किन फसलों को नुकसान हुआ है? अभी ज्यादातर तो यहाँ पे गेहूं का ही नुकसान हुआ है, जिसमें करीबन 30 या 40% तो कट चुका है। बहुत गेहूं का फसल बर्बाद हो गया है जी। तो अधिकारी आए थे जांच करने के लिए? कोई नहीं, घर बैठे रिपोर्ट दे दी? जी जी। और जो लोग काटे भी हैं उनका भी जो दौरी होता है थ्रेसर से, तो 1 घंटे के बजाय उनको 4 घंटा लगा। अगर 1 घंटे में 1000 रुपया के रेट से दौनी की जाती है तो उनका 4000, 1 घंटे वाला काम 4 घंटे में हुआ और 4000 रुपये उनको लगा। तो किसानों का हर तरह से
नुकसान ही नुकसान हुआ है। और खेत में अभी पानी लगा हुआ है और अभी पानी निकलने के बाद, सूखने के बाद ही फिर कटनी हो पाएगी। उसमें कोरोना जैसी महामारी में लोगों के पास भोजन का संकट है। कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा मार किसानों के ऊपर पड़ी है। और लॉकडाउन की वजह से किसान जो खेतों में जो गेहूं की फसल थी वो काट नहीं पाए, और जब काटने का समय आया और जब छूट दी गई तो बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जो खेतों में जो खड़ी फसल थी वो डूब गई और जो गेहूं की फसल बची भी है वो काले हो गए हैं। तो इसका जो दोहरी मार है किसानों को झेलनी पड़ रही है। और किसानों का आरोप है कि जो अधिकारी जिनको जांच का जिम्मा दिया गया है वो यहाँ जांच नहीं करने आ रहे हैं, बल्कि वो घर बैठे रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा और किसानों को मुआवजे का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से दी गई छूट में मिलने वाली स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक इस दौरान प्रीपेड मोबाइल रिचार्जिंग की सुविधा दी जा सकती है। इसके साथ शहरी इलाकों में ब्रेड फैक्ट्रियां, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, आटा और दाल की मिलों में काम किया जा सकता है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के साथ उनके घरों में रह रहे सहायकों के अलावा उनकी देखभाल करने वालों को भी सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट कर बताया गया है कि छूट को लेकर कई लोगों की तरफ से सवाल किए जा रहे थे और इसके बाद इस स्थिति को स्पष्ट करना पड़ा है। और भोजपुर से खबर, जहां के बढ़हरा इलाके में पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। मरीज के गांव के आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे को सील करते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। गांव में लोगों की आवाजाही पर रोक है। पुलिस कर्मियों के साथ गांव के मेन रोड पर बैरिकेडिंग के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई। मेडिकल टीम गांव के लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है और मरीज के 11 रिश्तेदारों को पूरी तरह क्वारंटीन किया गया है। इसके साथ ही रिश्तेदारों में 3 से 5 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। लॉकडाउन सील, पूरा एरिया को सील कर दिया गया है। सुबह में सैनिटाइजेशन हुआ है, मेडिकल टीम भी आई थी, अपना जांच वगैरह करके गई है। बाकी आगे का जो सैंपल वगैरह लिए गया है, यहाँ पे क्या संख्या आती है आगे का, वो लोग मेडिकल टीम के अपडेट होने के बाद ही बताया जा सकता है। फिलहाल अपनी विधि व्यवस्था में ड्यूटी लगी हुई है। अभी तत्काल जहाँ प्रभावित एरिया है, कल भी सैनिटाइज हुआ रामपुर का, आज भी सैनिटाइज हुआ है। स्क्रीनिंग वगैरह भी की गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। कल से ही शुरू है स्क्रीनिंग, आज भी शुरू हुआ है। जिन लोगों का फीवर या कुछ होता है उसको जो है फिर हम लोग तत्काल जो है उसे क्वारंटाइन कर उसका जांच की पड़ेगी। लॉकडाउन के 28वें दिन सासाराम में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। सासाराम के नगर थाने के एक मोहल्ले में 60 साल की महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। डेहरी के नारायण मेडिकल जमुहार में इस महिला का सैंपल का कलेक्शन किया गया। आपको बताएं कि महिला इससे पहले सासाराम के एक निजी क्लिनिक में भर्ती थी और कई तरह के रोगों से ग्रसित है। महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसके आवास के आसपास के मोहल्ले को सील किया गया है। उसके घर के 16 सदस्यों को क्वारंटीन पर भेज दिया गया। महिला और उसके परिवार के लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। बताया जाता है कि महिला के पति का सासाराम में ही सब्जी का कारोबार है। कोरोना बंदी के दौरान लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने सरकारी दफ्तरों को खोलने का फैसला किया, लेकिन सरकारी दफ्तरों के खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गईं, वो चिंताजनक है। नजर गड़ाकर देखिएगा, शायद आपको इन तस्वीरों में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिख जाए। हमें तो यहाँ एक आदमी से दूसरे के बीच दिल रखने की जगह भी नहीं दिखती। ये तस्वीर बांका की है। देखिए, जनधन खाते में आए पैसे को निकालने के लिए यूको बैंक में कैसे लोगों की भीड़ उमड़ी है। कोरोना बंदी की धज्जियां सिर्फ बैंकों में ही नहीं उड़ाई जा रही, हाट और बाजार में यही स्थिति है। प्रशासन के लाख सख्ती के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। कानून के तहत रहते हुए पूरी तरह से लॉकडाउन का लागू कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। बांका जैसी ही तस्वीर छपरा में दिखी। सदर एसडीओ कार्यालय के बाहर आज भी लोगों की भीड़ जुट गई। सोमवार की तरह राशन कार्ड बनवाने के लिए एसडीओ कार्यालय में लोग पहुंचे तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी।
मजबूरन पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ना पड़ा। भूखे प्यासे तो नहीं मर सकते हैं ना सर। एक तो लोग बीमारी से मर रहा है, जब पेट में दाना नहीं रहेगा तो मरिए नहीं जाएगा, क्या होगा बताइए। बोल रहा है कि इस पर नहीं मिलेगा, हाँ नहीं फ्री वाला मिलेगा, नहीं पैसा से आया है तो मिलेगा कि आपका राशन कार्ड बंद है। लोगों को परेशानी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सरकार के आश्वासन के बावजूद कई लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। ऐसे में लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि कोरोना को सोशल डिस्टेंसिंग से ही हराया जा सकता है। अगर इसमें जरा भी लापरवाही बरती गई तो खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में एक पेड़ से अचानक धुआं निकलने लगा। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस पेड़ से किस कदर धुएं का गुबार उठ रहा है। दरअसल पेड़ पर ठनका गिर गया था और इस वजह से पेड़ में आग लग गई। पेड़ से धुएं का गुबार उठता देख मौके पर कई लोग पहुंच गए और इस दुर्लभ तस्वीर को कैमरे में कैद करने लगे। हेलो और बड़ी खबर इस वक्त की, अररिया वायरल वीडियो कांड में एएसआई सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अररिया वायरल वीडियो कांड में एएसआई प्रकाश गिरी सस्पेंड किए गए हैं। एएसआई गोविंद सिंह निलंबित कर दिए गए हैं। चौकीदार को उठक बैठक कराने के मामले में निलंबन की कार्रवाई की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एएसआई गोविंद सिंह निलंबित किए गए हैं। यह तस्वीर थी जब अधिकारी इस चौकीदार को डांट लगा रहे थे। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर सुमन। सुबह 11 बजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पे मैं होऊंगा आप सबों से बातचीत करने के लिए कोरोना वायरस के ऊपर और कैसे हमें क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए और कैसे हम सब मिलकर ये लड़ाई साथ लड़ सकते हैं। देखना न भूलिएगा न्यूज़